گاڑی موٹر وے پر پوری آبوتاب کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ انبہار سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گئی تھی، لیکن وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک نظر اس نے اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر سے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مخصوص کر لی۔ اس کا ذہن بھی مسلسل ایک ہی نقطے پر سوچ رہا تھا کہ حویلی جا کر ہوگا کیا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، مگر کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنے دارجی اور خاندانی روایت کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ وہ شاید ہمت کر بھی لے، لیکن کبھی کبھی اپنوں کے سامنے کھڑے ہونا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کے حسب و نسب سے ایک واحد بندے کا ٹکر لینا انتہائی عجیب لگتا ہے، لیکن جب دل باغی ہو جائے نا تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے، جس سے وہ ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بہت سپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے تجسس تھا جاننے کا اس کے روایت کے خلاف ورزی کرنے کے بعد کیا رد عمل دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے ابھی تک انجان تھا۔ حویلی میں زہیب خان کے جانے کے بعد دارجی ابھی بھی کہیں ان کے لفظوں میں ہی تھی۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ تیر تھے جو دارجی کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، لیکن دارجی کو اپنی پگڑی کی لاج رکھنی تھی، وہ پگڑی جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اور ان کے خاندان نے بے شمار قربانیاں دی تھیں اور اب بھی دے رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ پریشان۔ انہیں اپنی پوتی کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ رودابہ بیگم، ذکوان اور مسیحا اپنے گھر جا چکے تھے۔ رودابہ بیگم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ شیر خان کسی کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے سوات سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ قدرے پرسکون تھے، لیکن شمامہ کو اپنے کمرے میں وہ منظر اور پھر اس کے بعد اس کی مورے کی حالت بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، اب مزید الجھ گئی تھی۔ اس کا شدت سے ان لمحے ذکوان کے پاس جانے کو دل چاہا تھا، لیکن جب مراد سے اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی تو شدت سے ابھرنے والی خواہش اس نے لمحوں پہ دبایا تھا۔ ذکوان حویلی سے اپنے کمرے میں آیا تو مسیحا چینج کر کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اب لوشن اپنے ہاتھ تیلیوں پر لگا رہی تھی۔ ٹینشن تو اسے بھی ہوئی تھی رودابہ بیگم کی حالت دیکھ کر۔ وہ قدم قدم چلتا آیا اور بیڈ پر جوتوں سمیت ڈھیر ہو گیا۔ بوڑھے سو گئی ہیں کیا؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہی مسیحا سے پوچھا۔ جی ابھی سلا کے آئی ہوں، شاہ مشکل سے ہی سوئی ہے۔ مسیحا نے اپنے ہاتھوں پر مساج کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جائے فریش ہو کر ریسٹ کریں، تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ اس نے لوشن کی بوتل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرمی سے اسے کہا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر کوہنی کے بل بیٹھ گیا اور مسیحا کی جانب دیکھنے لگا۔ تھکا ہوا تھا، اب تمہیں دیکھ کر تو ویسے ہی میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ گمبھیر خمار آلود لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ مسیحا کو تو خوف سا ہی محسوس ہوا تھا، آج اس سے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یہاں سے ہلنا مت تم۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ واپس آئے جلدی سے سو جاتی ہوں، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ وہ جلدی سے منہ پر کمفرٹر لے کر سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اس سے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دم سادے وہی لیٹی رہی۔ اس نے باہر نکل کر اسے منہ پر کمفرٹر ڈال کر لیٹا ہوا دیکھا تو بے ساختہ مسکرایا۔ بڑی چالاک ہے، پر میں بھی دیکھتا ہوں آج کیسے بچتی ہے یہ مجھ سے۔ وہ مسکرا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ لیٹا تو اس نے اپنی دوسری جانب دیکھا جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں میرے آنے تک ہلنا مت۔ اس نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ بس یہ اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس نے آنکھیں زور سے بیچی ہوئی تھی۔ زکوان کے کھینچنے پر بھی اس نے ایک بار پھر آنکھیں نہیں کھولی تھی، بلکہ اور زور سے میچ لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر زکوان کو جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ وہ اب غور سے اس کی بد آنکھوں والے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کی نوزپین والی ناک چھوئی تھی، جو ہمیشہ چھوتا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا نہیں کہ تم کتنی کیوٹ ہو؟ وہ اس پر جھک کر اب سے پوچھ رہا تھا۔ مسیحا تو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے دم کی ایک تھی۔ بتایا ہے نا، اس نے بڑے آرام سے آنکھیں بند کیے ہی اس سے کہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی۔ کسی کی اتنی جرات ہے جو تمہیں یہ کہتا رہے کہ تم وہ اپنی اصلی جارحانہ موڈ میں بس آنے ہی والا تھا۔ ارے بھائی، آپ ہی نہیں تو مجھے بتایا ہے کہ میں کتنی کیوٹ ہوں؟ وہ معصومیت کی انتہا پر تھی۔ اس کی بات سن کر زکوان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ بہت تیز ہو مسز زکوان، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس پر جھک رہا تھا۔ مسیحا پیچھے ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تیز نہ ہوں تو مسز زکوان کون کہے مجھے؟ اس نے بھی کوئی حساب باقی نہ رکھا تھا۔ اچھا جی، ہماری بلی اور ہمیں کو بھی آؤ، وہ ہنستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ مسیحا تو اس کی ہنسی کے لیے ویسے ہی سب کچھ کر سکتی تھی، پھر ایک خود کو اس کا کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ لمحے مسیحا اور زکوان کی زندگی سب سے خوبصورت ترین لمحے تھے۔ زندگی دونوں کی اصلی خوشیاں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سنا ہے محبت لاجواب کرتے ہو تم، لو ہم نے دے دیا دل، دیکھتے ہیں اس کا کیا حال کرتے ہو تم۔ صبح صبح فجر کے وقت اس کی بلیک ہیلکس کار حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے فی الحال نہ تو اس کا داجی سے ملنے کا موڈ تھا اور نہ ہی کسی کا سامنا کرنے کا۔ وہ گاڑی پورچ میں پارک کر کے اترنے والا تھا جب اس کی نظر ساتھ والی سیٹ پر سوئی ہوئی انبہاج پر پڑی۔ وہ اسے جگانا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پایا۔ پورچ میں چوکیدار اور ڈرائیور موجود تھے۔ اس نے پہلے چادر سے اچھی طرح اس کا چہرہ ڈھانکا اور پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
बाहर निकल कर इसने चाबी ड्राइवर की तरफ उछाली और इसे सामान बाहर निकालेगा कहकर खुद इसकी जाने वाले दरवाजे पर आ गया। दरवाज़ा खोलकर एक नज़र इसके सोए हुए वजूद पर डाली और फिर आगे बढ़कर इसे अपनी बाजू में उठा लिया। पाँव मारकर इसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और हवेली के सदर दरवाजे से सीधा अंदर दाखिल हो गया। वो मर्दान खाने से गुजरने के बजाय जनान खाने में से गुजरा था। इसे खदशा था कि कहीं मर्दान खाने में से दालचीनी न मिल जाए। लेकिन जब वो जनान खाने में दाखिल हुआ, सामने ही इसे अपनी मोहरें तस्बीह करती हुई नजर आ गई। वो जानता था अब सवालात की बौछार शुरू हो जाएगी। वो किसी किस्म का सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए बस सलाम करके अंदर जाना चाहता था। लेकिन इसकी बूढ़े ने आंखें खोल ली और वो इसे अपने सामने देखकर खुशी से हैरान रही। बगैर आंखें बोले इसने इनकी आंखें खोलने पर सलाम किया था। मेरा शहजादा आ गया। इसने झुककर इनसे प्यार लिया। अब कैसे इसे क्या हुआ? बच्चे तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने इसके बाजू में सोई हुई बिहाज की जानिब इशारा करके पूछा था। जी ठीक है, बस सोई हुई थी, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। दारा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा तो उन्होंने इस बात में सह लिया। अच्छा बच्चे, वो मैं कह रही थी कि अभी इनका जुमला मुंह में ही था कि वो बोल पड़ा। बोले प्लीज़ अभी कुछ मत पूछे, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी मुझे सोना है। मैं ड्राइव कर करके बहुत थक गया हूँ। इसने इनकी बात बीच में ही काट दी थी, लेकिन बच्चेदार जी उन्होंने वो कह ही दिया जो इन्हें कितने दिनों से बेचैन कर रहा था। इसने इसकी बात सुनकर एक गहरा सांस भरा था। कुछ नहीं होता, जस्ट रिलैक्स, मैं देख लूँगा, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसने इनकी परेशानी को कम करने के लिए हत्तल-बक्कात कोशिश की थी। अब मैं जाऊँ प्लीज़, बाजू थक गए हैं मेरे, इसे उठाकर चेहरे पर बेचैनी तारी करते हुए इसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ जाओ। उन्होंने मुस्कुराकर इसे जाने की इजाज़त दी तो वो सीढ़ियाँ बूट कर गया। इसके जाने के बाद जहाँ वो इसके आने पर पुरसुकून हुई थी, वहीं दादाजी के इस रद्द-ए-अमल का सोचकर परेशान भी हो रही थी। इसने कमरे का दरवाज़ा पाँव मारकर ही खोला था क्योंकि वो लॉक नहीं था। अंदर नीम अंधेरा था। इसके कमरे की हर चीज़ वैसी की वैसी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। इसने जल्दी से मिहाज को बेड की एक तरफ लिटाया, लेकिन इसके पाँव में खूसा था। दारा दारा ने गहरा साँस भरकर इसके खूबसूरत पैरों को खू के इसका खूबसूरत पैरों को खूसे की कैसे आज़ाद किया। बिलाशुबा इसके पाँव बहुत हसीन थे। इसने इसके ऊपर कम्फर्टर डाला, खुद अपनी शाल उतारकर सोफे पर फेंकी और इधर ही इसके साथ दूसरी तरफ ढेर हो गया। वो हकीकतन बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इतना कि लेटते ही वो गहरी नींद में चला गया। इब्तिहाज भी पूरी रात सोती जागती कैफियत में ही रही थी, तो वो भी इस वक्त सुकून से सो रही थी। दोनों की आँख तब खुली जब बाहर से पहले शोर की आवाज़ और फिर कमरे का दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। पहले इब्तिहाज की आँख खुली थी क्योंकि वो नींद की कच्ची थी, जबकि दारा की नींद गहरी थी और वो कुछ थका भी हुआ था, जिसके बाद वो बहुत पुरसुकून सो रहा था। इब्तिहाज ने एक नज़र साथ सोए हुए दारा सारा खान पर डाली और दूसरी तरफ खटकते हुए दरवाजे पर। बाहर के असली शोर से इसे अंदाज़ा हो गया था कि दरवाज़ा क्यों खटक रहा है। वो खुद तो दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे उठाने के बारे में सोचा था। सुने, इसने धीरे से इसे मुखातिब किया, लेकिन वो वैसे ही बेसुध पड़ा रहा था। दरवाज़ा एक बार फिर ज़ोर से खटका था। इब्तिहाज ने अब की बार इसे आवाज़ देने के बजाय ज़ोर से हिलाया था। क्या प्रॉब्लम है? सोने दो मुझे, इसने नींद में डूबी हुई आवाज़ में ही इससे कहा था। बाहर शोर बहुत तेज़ ज़्यादा हो रहा है और दरवाज़ा बज रहा है। मुझे लग रहा है दादाजी को हमारी आने की खबर हो गई है। वो अपने लिए बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रही थी। इसकी बात सुनकर दारा झट से उठा था। जब आवाज़ थोड़े बहाल हुए तो वो सारी बात समझ में आ गई। आप कमरे में ही रहेगी, मैं देखता हूँ बाहर जाकर, प्लीज़ आपने बाहर नहीं आना। वो बेड से उठकर बालों में हाथ चलाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। हाथ बढ़ाकर इस दरवाज़ा खोला तो सामने गुलबानो खड़ी थी। हाँ जी, दादाजी बुला रहे हैं आपको बरदात खाने में। गुलबानो ने बहुत ज़बरदस्त में कहा तो दरार ने इसे घूर कर देखा। थोड़ा आहिस्ता दरवाज़ा नहीं खटका सकती तुम? पूरी हवेली सर पर उठा ली थी तुमने। इसके इत्मीनान काबिल यकीन था। इसने गुलबानो को अच्छी खासी सुनाई थी जिस पर वो बेचारी से पिटा गई थी। माफ़ कीजिएगा हाजी, मगर दादाजी का हुक्म था कि दरवाज़ा ज़ोर से बजाओ। गुलबानो ने माज़रत ख्वाह लहजे में कहा तो दरार ने गहरी सांस भरी। जाओ तुम और कह दो दादाजी से कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो जी अच्छा कहकर पलट कर नीचे चली गई थी, जबकि वो दरवाज़ा बंद करके बालों में हाथ चलाता अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे दादाजी? तो बहुत गुस्से में हो गया। इब्तिहाज जो कब से बेड को क्राउन से टेक लगाए बैठी हुई थी, इससे मुखातिब हुई। करेगी क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? दादाजी हवेली से निकाल देंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूँगा। आप फ्रेश हो और ज़रा पेशी भुगता कर आता हूँ। इसका गाल थपथपा कर इसने कहा तो इब्तिहाज ने इसे घूरा। ऐसे सिचुएशन में भी आपको मजाक सूझा है? वो बेहद खौफज़दा थी और दरार को इसका अंदाज़ा हो गया था। वो चलता हुआ इसके पास आया और उसके सामने बेड पर बैठ गया। इसे इसके चेहरे पर खौफ के साए साफ दिखाई दे रहे थे। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ अपने हाथों में थामे थे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने बोला था ना दादाजी को आप वो कुछ भी नहीं कहेंगे, तो क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं आप? इसके चेहरे की जानिब देखते हुए दारार ने कहा तो इब्तिहाज निगाहें झुका दी। मैंने आज तक कभी दादाजी को अपनी वजह से गुस्से में नहीं देखा। इसे अपनी बेबसी वो अब इसे बेबसी से देखकर कह रही थी, तो आप की वजह से वो गुस्से में अब नहीं है। आप परेशान क्यों? मैंने बोला था दादाजी को आप कुछ भी नहीं कहेंगे, तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आप इसके चेहरे की जानिब देखते हुए दारार ने कहा तो इब्तिहाज निगाहें झुकाई। मैंने आज तक कभी दादाजी को अपने गुस्से में नहीं देखा। वो अब इसे बेबसी से देखकर कह रही थी, तो आपकी वजह से तो गुस्से में अब भी नहीं है। अभी तो गुस्सा मेरी वजह से आया है नहीं। वो अब इसे बेपनाह नरमी से मुखातिब था। आप फ़िक्र मत करें, मैं हूँ ना, आपके साथ कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको सो रिलैक्स। अच्छा अब मैं सुन के आता हूँ दादाजी की बात, आप यहीं रहिएगा, ठीक है ना? वो इसकी तरफ ही देख रहा था जिसकी नाक रोने के बाद कुछ सुर्ख हो गई थी। इसने इस बात में सह लाया था, उसके गाल थपक कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर नीचे आया तो मर्दान खाने में हस्बे तवक्का अदालत लगी हुई थी। दादाजी जली बिल्ली के पैर की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। इनकी शक्ल देखकर दारा सरार खान अंदाज़ा लगा सकता था कि अब इसकी
کہ اس کی اب کیا حالت ہونے والی ہے، لیکن اس کے چہرے پر ڈر کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا دارجی کے سامنے آیا تھا۔ بخیر عقل دارجی، اس نے انتہائی ہمت اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا، لیکن بدلے میں جس طرح کے تیور سے دارجی نے اسے گھورا تھا نا، اس نے اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈر کہیں پیدا کیا تھا۔ ارے واہ، آئیے ویسے دانت دینے پڑے کیا؟ تمہارا بے خوفی اور ہٹ دھرمی کا، غلطی کر کے بھی کیسا سکون سے ہمارا سامنے کھڑا ہے تم۔ آج تک ویسا ہمت کس نے نہیں کیا؟ دارجی بول رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ آگے سے بالکل خاموش تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارا اجازت کے بغیر اس حویلی کا عورت کو حویلی سے باہر لے کر جانے کا؟ اب کی بار وہ اپنے سوال پر روبرو آ گئے تھے۔ اس وقت مردان خانے میں حویلی کے سب مرد موجود تھے اور کسی کی بھی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بھی دارجی کے آگے بولے۔ ادھام کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ دارجی کے آگے جا کر بولے، آخر وہ بھی تو اتنے سالوں سے یہی سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی تو حویلی میں محض قید ہو کر رہ گئی تھی اور اس پر اس کی ادھام سے محبت اور صبر ہی تھا جو اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں نکالا تھا۔ دارجی وہ حویلی کی عورت کے ساتھ ساتھ اس حویلی کے بیٹے کی بیوی بھی ہے۔ اس پر میرا حق ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جہاں مرضی لے جا سکتا ہوں۔ یہ اجازت مجھے میرا دین دیتا ہے۔ اس نے انتہائی تحمل سے ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ دین کون سا دین؟ وہ دین جس کا تکمیل کے لیے تم سے 5 وقت کا نماز ادا نہیں ہوتا؟ دارجی بھی اب کی بار پورے طیش میں آئے تھے۔ وہ میرا اور اللہ کا ذاتی مسئلہ ہے دارجی، اس میں آپ کو بولنا نہیں پڑتا۔ اس کا اطمینان اب بھی قابل دید تھا۔ سنات خان، اس کا زبان کو لگام ڈالو ورنہ آج ہم یہاں بھول جائے گا کہ ہمارا لاڈلا پوتا ہے جس کا جدائی ہم پچھلے 15 سال برداشت کی ہے۔ انہوں نے سپاٹ نظر سے سنان خان کو کہا تھا، ڈرا تو چپ کر جاؤ، کیوں دارجی کے آگے زبان چلا رہے ہو؟ سنان اشمل خان نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے نگاہوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں چپ کر جاؤں بابا جان؟ میں کیوں خاموش ہوں؟ بتائیں آخر مجھے کیا قصور کر دیا میں نے جو یہاں عدالت لگی ہے میری؟ سنان خان نے بی بی جان سمیت سب خواتین تمسادے مردان خانے میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ البتہ انتہاجہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ انتظارہ بچے جاؤ، جا کر بی بی کو بلا کر لاؤ۔ رحمہ بانو نے انتظارت سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ پر ایک طرف خوف سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ بی بی انتظارہ سے پکار کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ انبہاج انتظارہ کے گلے لگی اور پھر جب روئی تو انتظارہ کو اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بس بی بی، آپ کو نیچے زندان خانے میں مورے بلا رہی ہیں، آپ چلیں، سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ انتظارہ اجلت میں کہا، کیا مطلب ہے؟ انتظارہ اس بات کا اس نے خوف سے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ چلیں تو سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کے ساتھ نیچے زندان خانے میں آ گئی۔ جہاں درار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنی جگہ ساتھ رہی۔ بس بابا جان، آپ روایت کے بندے ہوں گی لیکن میں نہیں، ان روایت کا قیدی، جہاں انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ پہلے حکم صادر کر کے انہوں نے مجھے باہر سے بلوا لیا، حالانکہ میں پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے میرے آتے ہی اپنی پوتی سے میری شادی کا حکم دے دیا۔ میرے انکار کرنے پر مجھے مفت کا بلیک میل کیا، شادی کر لی۔ اب باہر لے کر گیا ہوں تو حویلی کی عورت کو باہر لے کر جانے کی جرات کیسی ہوئی تم میری؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے مجھ سے۔ اس کی آواز قدر اونچی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنا، سالوں سال ہو گئے اس حویلی کو عورت کو باہر دہلیز عبور کیے ہوئے۔ صرف یہ تمہارا بیوی کا ضد کرنے پر ہم نے سخت پردے میں پڑھنے کا اجازت دیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی حد بھول جائے۔ دارجی نے غصے سے کہا تو دارا نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ واہ دارجی، جو کل تک آپ کی پیاری پوتی تھی وہ آج صرف میری بیوی بن گئی اور وہ اپنی حد نہیں بھولی۔ اسے اپنی ہر حد اچھے سے یاد ہے۔ وہ میرے کہنے پر میرے ساتھ گئی تھی کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اس کا فرض تھا کہ وہ میری بات مانے۔ وہ آج ایک انچاہی عورت کی طرف داری کر رہا تھا، وہ انچاہی عورت جو اس کی بیوی تھی، جس کی حدود میں ہونے کا اعلان وہ آج اس قبیلے کے سردار کے سامنے سر اٹھا کر رہا تھا۔ صدارت خانے میں جالیوں کے ساتھ لگی انبہاج اس کے ساتھ ہونے پر فخر کرتی یا افسوس، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمارا پوتی آج بھی ہے، لیکن اب وہ ہمارا پوتی سے زیادہ تمہارا بیوی ہے۔ دارجی بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، اس طرح تو وہ اس حویلی کی بیٹی ہونے سے پہلے بھی میری بیوی ہے، حق رکھتا ہوں میں اس پر۔ دارا کے لہجے میں اب کی بار سکون تھا۔ دیکھو دارا، روایت کی پاسداری کرنے والے تم تنہا نہیں ہو، یہاں اپنے ارد گرد نظر گھما کر دیکھو، جہاں کھڑا ہر نفس ان روایت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سالک اشمل خان نے بھی اسے سمجھایا۔ خاموش ہو جاؤ تم سب، دارجی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ تم قبیلے کا سردار کا پوتا ہے، وہ بھی جو پوتا جو روایت کی زنجیروں سے ہر وقت نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، غلطی تم نے کیا ہے، اب اس کا سزا بھی تم بھگتو گے۔ ہم اپنی زندگی میں سب برداشت کر سکتا ہے لیکن روایت کی خلاف ورزی نہیں، اس لیے تو ہمیں سزا ملے گا۔ سزا کی راہ پر انبہاج کے اندر تک کانپ گئی تھی۔ دارجی کی سزائیں کس قسم کی ہوتی تھی وہ اچھے سے واقف تھی، لیکن دارا ان سزاؤں کی الف سے بھی واقف نہیں تھا، اور یہی چیز اسے لرزانے کے لیے کافی تھی۔ نہیں بی بی جان، روکے دارجی کو، انہیں کہیے کہ دارا کو کوئی سزا مت سنائے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں دارجی کے سزاؤں کو، پلیز روکے یہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بی بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ کسی کے لیے وہ منت کر رہی تھی، اپنے اس شوہر کے لیے، اپنے اس عشق کے لیے جو اسے ایک انچاہی عورت سے زیادہ کچھ تصور ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ کیوں اس کی فکر میں گھل رہی تھی؟ ایک بار پہلے بھی اس نے اس کی شخص کی خاطر خود کو بے مول کیا تھا، وہ آج پھر
और आज फिर वो इसको बचाने के लिए हाथ जोड़े खड़ी थी। लाडले पोते के लिए सज़ा का लफ्ज़ सुनकर तो बीबी जान भी अंदर से काँपी थी। उन्होंने इब्तिहाज की तरफ देखी थी, लेकिन वो इस लम्हे अपने आप को हद से ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो बच्चे, मैं इस लम्हे तुम्हारे लिए और अपने पोते के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर खान ने सज़ा देने का कहा है तो वो अपनी ज़ुबान नहीं छोड़ेगी। अब तो सिर्फ दुआ और इंतज़ार करो, तुमकी सज़ा वो हो जो दारार सरार खान बर्दाश्त करे। आखिर पर वो सपाट चेहरे के साथ बोली थी। वो वही रह सी गई थी। अब इसे इंतज़ार था मौत के परवाने का, या देखने का कि अदालत में इसके शोहर दारार सरार खान को क्या सज़ा सुनाई जाती है। किस बात की सज़ा दारजी? सज़ा इनको दी जाती है जिनका कोई जुर्म होता है। मैंने क्या जुर्म किया है? दारार सज़ा का नाम सुनकर ही तैश में आ गया था। क्या ये जुर्म कम है कि तुम अपने हस्ब नस्ब से ही भागता है? तुमने हमारा सामने खड़ा होकर हमारे जज़्बात का अंदाज़ा लगा लेता है। ना तो कितना मज़ा आए जब हम तुम्हारा सामने खड़ा होकर तुम्हारे जज़्बात का अंदाज़ा लगा सके। दारजी बोल रहे थे और वो उलझ कर बेचारे देख रहा था। सरार खाने में मौजूद सब औरतों की जान पर बनी हुई थी। बीबी बेगम साफ थी, जिसे अब मौत आई तो अब आई। क्या फैसला होने वाला था कोई नहीं जानता। जब हदूद तोड़ना चाहता है तो तुम सज़ा मुकद्दमा भी जानता ही होगा कि हम तुमको बुज़दिल तसव्वुर करें। दारजी इसका अना और गरूर से बड़े ही आराम से खेल रही थी, और वो कैसे बर्दाश्त करता अपनी अना का खून, अपने गरूर की हार। फिर फैसला तो इसे करना ही था। मंजूर है मुझे जो भी सज़ा दिया। इसका ये कहना था। बरतान खाने में सभी हैरत व गम से दरार की जानिब देख रहे थे, क्योंकि तकरीबन सभी जानते थे कि सरदार अशफाक खान की सज़ा किसी किस्म की होती थी। इन बिहार जालियों के साथ ही नीचे बैठ गई थी, क्योंकि अब इसकी सज़ा मंजूर कर लेनी थी और वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। दारजी की आवाज़ एक बार फिर इसके कानों से टकराई थी। मैं सरदार अशफाक खान आज अपने पोते दरार सरार खान को रवायत को तोड़ने और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर ये सज़ा सुनाता हूँ कि आज इस कबीले की भाग दौड़ में नहीं ये संभालेगा। हर जिरगे का फैसला मैंने ही दरार सरार खान करेगा। ये बनेगा अपने दादा का जानशीन। किसी को कोई एतराज़ है तो यहाँ बोल सकता है, लेकिन एतराज़ किसको होना था? वहाँ तो सबको दरार की हालत पर रहम के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? बीबी बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। बाकियों की हालत भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। ये पगड़ी आज से तुम्हारा हुआ। अब तुम सरदार दरार खान तो अब तुम सरदार दरार सरार खान है। उन्होंने अपने सर की से पगड़ी उतार कर इसके सर पर रख दी थी, जो ऐसे खड़ा था जैसे ये सब इसकी जगह किसी और के साथ हो रहा है। अब हम देखेगा तुम इस पगड़ी की लाज कितनी रखता है और कितनी रवायत से नजरें चुराता है। जो सज़ा अशफल खान ने इससे सुनाई थी, वो इसके अलावा तकरीबन सब जानते थे कि कितनी अज़ियतनाक है। ये तो वो हो गया था कि उन्होंने अपने गले का तोप उतार कर बड़ी ही आसानी से अपने पोते के गले में डाल दिया था, और अब तो तकरीबन पूरे कबीले को पता चल गया चुका होगा कि कबीले का सरदार दारार सरार खान बन गया है। वो इसके सर पर पगड़ी पहनाकर बरदार खाने से जाने लगी थी कि उन्होंने मुहजी को मुखातिब किया। मुहजी बच्चे, जी दारा थी, जी दारजी, जाओ जाकर सुल्तान से कहो कि पूरा कबीले में ऐलान कर दे कि सरदार अशफाक खान ने अपने जानशीन मुंतखब कर लिया है। ये क्या हो रहा था? इन बिहाज की समझ से बालातर था। दारार को कबीले का सरदार बना दिया गया था, और वो अच्छे से जानती थी कि सरदार बनने का मतलब क्या होता है। अब तो एक पत्थर दिल इंसान को एक और पत्थर पहना दिया गया था, जिसका इस्तेमाल कैसे करना था वो वसूख से कह सकती थी कि वो जानता होगा, क्योंकि वो खामोश था। इतना कि इसके सारे लम्हे पे एक भी आवाज़ नहीं आई थी। हालत हालात किसी और ही रेंज पर खड़े हो गए थे। बिलाशुबा दारजी ने खुद अपने जानशीन मुंतखब करना था, मगर वो दरार होगा ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इंतसारा, इसने होले से इंतसारा को पुकारा। मुझे मेरे कमरे में ले जाओ, इसने सपाट तासुरात के साथ इससे कहा था। जी बीबी जी चले। मैं इसे सहारा देकर ऊपर इसके कमरे में ले आई और इसे बेड पर बिठा दिया। आप ठीक है बीबी? इसने तशवीश से इससे पूछा था, क्योंकि इसकी हालत इंतसारा को किसी तौर पर भी ठीक नहीं लग रही थी। आप मुझे ठीक नहीं लग रही है, इंतसारा ने इसकी जानिब देखते हुए फिक्र से कहा। तो इब्तिहाज एक लम्हे के लिए आंखें मूंद गई। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो अपने सामने बेडशीट के डिज़ाइन को घूरते हुए इसे कह रही थी। बीबी आप क्यों चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। वो अभी इसके पास ही बेड पर बैठ गई थी। कैसे न चाहती, इसने मुझसे कहा था चलने के लिए। इब्तिहाज ने मध्यम लहजे में कहा था। वो जो भी कहेगी, चाहे खुद गलत ही क्यों ना हो, आप मान लेगी? इसने हैरत से इसके सवाल किया था। नहीं, सारी नहीं, सिर्फ वो जो मानने वाली होगी। इब्तिहाज ने धीरे से कहा था। तुम जाओ और लाइट ऑफ करती हुई जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना फिलहाल। आंखें मूंदे इसने कहा। तो इंतज़ारा ने बेचारगी से इसकी जानिब देखा, लेकिन बीबी कुछ तो खा ले। अब की बार फिर से कोशिश की गई थी। कहा ना, जाओ शाबाश, तुम करो नाश्ता, जब भूख लग होगी मैं खा लूँगी। इसने कदर नरम लहजे में इससे कहा था। इंतज़ारा उठकर लाइट ऑफ करके बाहर चली गई, तो इसने बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। इसकी समझ से बाहर था कि इसकी आजमाइश कब ख़त्म होगी, या वो यूँ ही हमेशा ज़िंदगी भर इसकी ज़ात पर सब्र करके गुजार देगी। सब्र, आह! इसने एक गहरा सांस भरा। किस कदर छोटा लफ्ज़ है, लेकिन मायने इतने ही बड़े। इस छोटे लफ्ज़ को सँभालते सँभालते एक उम्र बीत जाती है। ये लफ्ज़ और इसकी बाज़ इंसान की नस्ल अदद से खोखली कर देती है। लेकिन बज़ाहिर इस्तकामत दिखाना इस लफ्ज़ और अमल का अमली तकाज़ा है। वो एक मुद्दत से एक शख्स की ज़ात पर इस छोटे लफ्ज़ का बड़ा बोझ उठाकर घूम रही थी, और अब तो इसकी अपनी शख्सियत पर इस शख्स की ज़ात का बोझ इतना बढ़ गया था कि इसका अंदर खोखलाहट का शिकार हो रहा था। तो कब ख़त्म होना था ये इम्तिहान, और इसकी बाज़ वो जानती थी कि अल्लाह अपने बंदों को इतनी जल्दी इतना ही आज़माता है जितनी इसमें इस्तात हो। तो क्या इसके सहने और बर्दाश्त की हद अपने इख्तिताम को पहुँच रही थी, या वो खुद अपने हार के झूले की तरफ इस तेज़ी से बढ़ रही थी? या अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। वो चाहकर भी नहीं जान सकती थी। रात से सुबह हो गई, वो नफ्स जिस पोज़ीशन में था अभी भी इसी हालत में था, साथ बगैर किसी हरकत के। क्यों?
کبھی کبھی جن چیزوں کو آپ بھولنا چاہتے ہیں وہ پھر سے کیوں آنکھوں پہ امتحان بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی اب اسے بری طرح جیسے کہ سارے گزشتہ زخم ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ رنداوا شیر خان کو جسم تو پہلے سے ہی شیر خان کے تشدد کا سے مفلوج ہو چکا تھا، اور تو پھر اب اور کون سی تکلیف تھی جس کا ارتکاز ابھی باقی تھا، جو قدرت نے زہیب خان کی صورت میں اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے۔ وہ ساکن تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھ کر، جس محبت کو ساری زندگی انہوں نے یک طرفہ سمجھا تھا، خود تو کبھی دھیان ہی نہیں پائی تھی کہ یہ آگ دونوں کے برابر جھلسا رہی ہے۔ اگر صرف روایت انہیں تھوڑی سی اجازت دیتی تو وہ آج ایک انچاہی عورت کے بجائے کسی کی چاہ بن کر اس کے گھر کو بہکا رہی ہوتی، لیکن قسمت و نصیب وہ واحد ایسی چیز ہے جو ایک ہی ہے اور جن سے کوئی نہ کبھی لڑ سکا ہے اور نہ لڑ سکے گا۔ جس کے ساتھ لکھا اسی کے ساتھ گزارنا چاہے تو کسی کی چاہ ہی بن کر گزار دو، یا چاہے انچاہی بن کر، پھر اس لمحے انہیں فائدہ کس میں تھا، اس کی چاہ بننے میں یا انچاہی بننے میں؟ تو معاملہ صاف تھا، فائدہ تو ان کا شروع سے ہی انچاہی میں ہی تھا، کیونکہ وہ اگر زہیب خان کی چاہ بھی بن جاتی تو ساری زندگی کے لیے اپنی بی بی جان اور دارجی کے لیے انچاہی ہو جاتی۔ تو پھر اچھا نہیں ہوا کہ لمحوں میں انہوں نے اپنی عزیز خواہش کو گلا دبا دیا اور خود کو بڑی ہی فراخ دلی سے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ 2-3 آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھ سے گرے اور ان کے ہاتھوں میں کہیں جذب سے ہو گئے۔ جب دل مار دیا تو کا رونا کس بات کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 30 سال قبل کا وقت تھا، پھر سے ایک امتحان بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا، جس سے ایک بار پھر انہوں نے سرخرو ہو کر نکلنا تھا۔ تو اپنے ہی حال میں وہیں بیٹھ کے ساتھ نیچے ساکن بیٹھی ہوئی تھی جب انہیں اپنے بال کسی کی گرفت میں محسوس ہوئے تھے۔ وہ جس تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم ہی تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ تو بے غیرت عورت کس کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی حویلی میں؟ بتا مجھے ذلیل عورت۔ صدمے سے جیسے اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شیر خان کو یہ سب پیدا کیسے چلا۔ شماما تو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس وقت صرف وہی کھڑی تھی وہاں ان کے پاس۔ پھر کون تھا وہ؟ کون کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لڑکھڑاتے لہجے میں انہوں نے کہا تو شیر خان کا غضبناک آواز ابھری۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، سارے زمانے کی بدنام عورت میرے ہی مقدر میں لکھنی تھی۔ چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو پڑ رہا تھا۔ بس شیر خان، بس بہت ہو گیا، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ سارے زمانے کی بدنام عورت اگر تمہارے نصیب میں لکھی گئی تو سارے زمانے کے عیاش مرد کو میرا بھی مقدر بنایا گیا ہے، سمجھے نا؟ وہ آج بول رہی تھی، وہ تھک گئی تھی مار کھا کر۔ اگر آج مار پڑنی تھی تو کیوں نہ تھوڑا بول کر ہی کھا لی جائے۔ کبھی کبھی خاموش رہ کر آپ اپنے آپ کو بزدل قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ بزدل ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف وقت اور حالات بزدل بنا دیتا ہے۔ تو زبان چلاتی ہے میرے آگے، تیری جرأت کیسے ہوئی بولنے کی میرے سامنے؟ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا جو ان کے منہ پر نہیں روح پر لگا تھا۔ ایسے کتنے ہی تھپڑوں سے ان کی روح پچھلے 30 سال سے گھائل تھی، اب تو وہ درد محسوس کرتی ہی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آوازیں اتنی اونچی تھی کہ صاف پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ زکوان ابھی آفس گیا تھا اور مسیحا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے اپنی طبیعت کچھ ڈھیلی سی محسوس ہو رہی تھی، اس نے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن نیچے سے آتی آوازوں نے اس کی حس بیدار کر دی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اپنا دوپٹہ لیتی ہوئی بال جوڑے کی شکل میں لپیٹتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ وہ اس وقت اکیلی تھی، شماما یونیورسٹی چلی گئی تھی، وہ بس ابھی پھوپھی جان کو راستے کا پوچھنے نیچے آنے ہی والی تھی کہ یہ آوازیں۔ وہ اس حد پریشان ہو گئی تھی، اس لیے ہڑبڑی میں نیچے اتری۔ نیچے اتر کر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیر خان رنداوا بیگم کو درندوں کی طرح مار رہے تھے۔ بسیا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا۔ چھوڑے پپا جان، آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس نے ان کے قریب جا کر اونچی آواز میں ان سے کہا تھا۔ لڑکی تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمارے معاملے سے دور رہو، تم سمجھی نا؟ انہوں نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے دور رہنے کے لیے کہا۔ کیوں دور رہوں، یہ میرا بھی گھر ہے، مسیحا پوری قوت سے چلائی تھی۔ بسیا بچے تم جاؤ یہاں سے پلیز، رنداوا بیگم نے سست چہرے کے ساتھ سے وہاں سے جانے کے لیے بولا تھا۔ کیوں جاؤ میں پھوپھی جان؟ یہ انسان نہیں ہے، درندہ ہے جو ایسے پیٹ رہا ہے، وہ بھی بغیر بات کے۔ وہ انتہائی غصے اور نفرت سے اس سے کہہ رہی تھی۔ لڑکی اپنی حد میں رہو، سمجھی نا، اور دفع ہو جائے یہاں سے، انہوں نے تیش کے عالم میں اس سے کہا تھا۔ آپ کیوں سہتی ہے ان کی باتیں؟ بتائیں مجھے، کیوں کچھ نہیں بولتی آپ اپنے بیٹے کو؟ کیوں نہیں بتاتی کہ یہ شخص کس قدر سفاکی سے آپ کو مارتا ہے؟ وہ چیخ کر بولتے ہوئے ان کے نزدیک آئی تھی۔ بچے پلیز جاؤ یہاں سے، اور زکوان کو کچھ مت کہنا، رنداوا بیگم نے سسکتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ کیوں نہ کہوں میں ان سے، بتاؤں کی میں انہیں؟ ان کا یہ نام نہاد باپ کیا سلوک کرتا ہے ان کی ماں کے ساتھ؟ وہ ہر لحاظ فراموش کی ہوئی تھی۔ کہا نہ بکواس بند کر اپنی، لیکن نہیں ہو رہی تیری زبان بند۔ شیر خان ایک زوردار تھپڑ مسیحا کے منہ پر بھی مارا تھا جس سے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور سیدھا دروازے میں سے کسی کے قدموں میں گری تھی۔ زکوان نے حیرت سے نیچے اپنے قدموں میں گری ہوئی مسیحا کو دیکھا اور پھر اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ۔ مسیحا کو ہوا کیا؟ تم ٹھیک ہو؟ مسیحا کیا ہوا؟ تو کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے قدموں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح دیکھ سکتا تھا۔ یہ نشان دیکھ کر اس کی اپنی بٹیاں بھیجی تھی۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ یہ نشان کس کے ہاتھ میں ہے۔ اوپر سے اپنے بورے کی حالت دیکھ کر وہ ایک لمحے میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ تو کوئی فائل نہیں آیا تھا، تب رکھتے ہی پہلے مسیحا کی اور پھر شیر خان کی آواز اور اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔
बसिया बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इसे एक लम्हा लगा था दुनिया माफिया से बेगाना होने में। वो सकवान के बाजू में ही झूल गई थी। ओह शिट! बसिया उठो, क्या हुआ है? आंखें खोलो बसिया, पूरे प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। वो इसे अपने बाजू में उठा चुका था। इसे सारे अरसे में शेर खान के चेहरे पर परेशानी सख्त वाज़ेह थी। सकवान चलता हुआ इनके सामने आया और इंतहाई गुस्से में इनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। और जब इसने बोलना शुरू किया तो इसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। आइंदा अगर आपने मेरी बोरे पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर मेरी बसिया को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा क्या मेरे बाप है। वो इसे बाजुओं में उठाकर वहां से बाहर निकल कर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गया और इसे बेड पर बिठा दिया। बसिया उठो मेरी जान, क्या हुआ? प्लीज़ तुम्हें प्लीज़ बसिया उठो। इसने साइड टेबल पर पड़े हुए पानी के ग्लास में से 2-3 छींटे इसके मुंह पर मारे, लेकिन इसे होश नहीं आया। इतनी देर में नूरी ने कमरे का दरवाज़ा बजाया। हाँ जी, डॉक्टरनी साहिबा आ गई है। नूरी के बताने पर इसने इस बात पे सर हिलाया। ठीक है, तुम अंदर भेजो। वो बाहर निकल गई तो एक ग्रेसफुल सी लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर प्लीज़, शी इज़ माई मिसेस। आप देखिए इन्हें होश नहीं आ रहा। सकवार के लहजे में परेशानी झलक रही थी। शेरहान जी डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। वो दोनों बाजू सीने पर फोल्ड करके साइड पर खड़ा था। परेशानी चेहरे से ही झलक रही थी। डॉक्टर इसे चेक करके सकवार की जानिब आई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा खान जी कि इन्हें इस हालत में इतने स्ट्रेस क्यों दिया गया है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सकवार ने हैरत और नासमझी सी मिलीजुली कैफियत में डॉक्टर की जानिब देखा था। आई एम सॉरी डॉक्टर, बट किस कंडीशन में? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। सकवार ने नासमझी से कहा तो डॉक्टर मुस्कुराई। हाँ जी, योर फाइव इज एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग। डॉक्टर के बताने पर इसने हैरत से इसकी जानिब देखा था। व्हाट फ्रॉम वेट? इसने हैरत से इनसे पूछा था। ये इनकी अर्ली प्रेगनेंसी है, इन्हें सख्त ज़रूरत है कि रिलैक्स रहे वरना बहुत सी कम्प्लिकेशन हो सकती है। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में कहा था। डोंट वरी डॉक्टर, मैं इनकी पूरी केयर करूँगा। आइता मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। वो बाहर निकल गई, वो इनके पीछे नहीं छोड़ने बाहर चला गया। बेवक्त इनकी खुशी और गम उससे दोनों ने घेरा था। खुशी से अपने बाप पर नेकी थी और गुस्सा इससे अपने बाप पर था। सारा दिन वक्त बवक्त कबीले के मुख्तलिफ लोग सरदार दारार सरार खान की पगड़ी की तस्दीक करते आ रहे थे, और अब तो वो बाकायदा तौर पर सरदार की कुर्सी में बैठा हुआ था। मुख्तलिफ जिरगों के फैसलों में भी वो सरगर्म रहा था, लेकिन वो वाहिद बात थी वो ये थी कि इसने किसी से भी बात नहीं की थी। सारा दिन वो बिल्कुल सपाट तासरात के साथ एक रोबोट की तरह दारजी के साथ घूमता रहा था। साथ सच तो ये था कि इसने कभी भी खुद को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं किया था, लेकिन वो हैरान था दारजी के बारे कि ये क्या सज़ा दी है उन्होंने। इसे एक ऐसी फांसी दी थी जिसने से ना तो वो निकल सकता था और ना ही उगल सकता था। वो एक ऐसे कांटे में फंस गया था जो सारी ज़िंदगी इसने साथ लेकर चल रहा था, और वो चाहकर भी इस कांटे को खुद से अलग नहीं कर सकता था। रात 10 बजे हवेली की सारी बत्तियाँ बुझी तो इसने भी अपने कमरे का रुख किया। सारा दिन से बेहाश ना तो कमरे से बाहर निकली थी और ना ही इसने कुछ खाया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो शकी नमाज़ पढ़कर चाय नमाज़ तय कर रही थी। चाय नमाज़ तय करके इसने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके दुपट्टा उतार कर सोफ़े पर फेंक कर बालों को जूड़े की शक्ल दी और बेड पर लेट गई। तब तक वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गया था। इसने अपनी रिस्ट वॉच खोलकर साइड टेबल पर रखी वो कैजुअल कपड़ों में मलबूस था। ग्रे ट्राउज़र के ऊपर टी शर्ट पहने वो भूरे बाल हाथ से माथे पे पीछे हटाता बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया था। वो हैरान था, इसने इसकी कोई बात नहीं की। ना ही आने के बाद खाने का पूछा, ना कपड़े निकाल कर दिए। तो इसका चौंकना लाज़मी था। इब्तिहाज इसने धीरे से इसे मुखातिब किया तो मगर इब्तिहाज ने जाते हुए भी इससे बुलाने पर कोई जवाब नहीं दिया। सो गई हो क्या? इसने फिर इसे मुखातिब किया था मगर फिर बेसुध हो गई। कोई जवाब नहीं। अब की बार इसने इसके कब्र से पकड़कर अपनी जानिब किया तो इब्तिहाज ने आँखें ज़बरदस्ती ज़ोर से बंद कर ली थी। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? दारार को जैसे अपने नज़रअंदाज किए जाने का यकीन नहीं आ रहा था। इसे बेहद बेचैनी ने घेरा था। वो नहीं जानता था क्यों, मगर वो इसकी बात ना करने पर सख्त बेचैन हो गया था। तुम नाराज़ हो क्या? अब की बार इसने गुस्से से पूछा था। गुस्सा तो इसे बहुत आ रहा था कि मैडम ज़्यादा ही नखरे दिखा रही है, पर फिर भी जब्त कर गया कि इसका अपना ही गुजारा नहीं हो रहा था इसके बगैर, इससे बात किए बगैर। आज मुझे सा आज वो ये बात अशोक से कह सकता था कि दारार सना खान को इन बेहाय दारार की आदत हो गई थी और आदत मोहब्बत से कितनी ज़्यादा जानलेवा होती है वो बहुत अच्छे से जानता था। वो तो अभी तक खुद अपने अंदर पलने वाले जज्बों से अक्सर अनजान था, मगर वो इस बात से बेखबर था कि जब तक इसे अपने जज्बों की आगाही होनी थी तब तक बहुत देर हो जानी थी। किसी को पाकर खोना क्या होता है ये इसे अच्छे से समझ आने वाला था। सवाल अब धीरे धीरे अख्ताम की तरफ जा रहा था। ऐसे मसनूई आंखें बंद करके ना बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो, वो इस पर झुककर इससे कह रहा था, मगर इसने फिर भी आंखें नहीं खोली। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे अपने तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। वो इससे कहकर इसके चेहरे पर झुक रहा था। इम्तियाज को इसकी सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। क्या मसला है, क्या कर रहे हैं आप? इम्तियाज ने दूर हटाए हुए कहा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो हासिल कर रहा हूँ। वो भी बेहद इत्मीनान भरे लहजे में इससे कह रहा था। और आपको मेरी तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई थी। तुम नाराज़ हो, ये तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? दारा के माथे पर तेवरी लिए कहा तो इम्तियाज ने रुख मोड़ लिया। मेरे पास ये सारे हकूक नहीं है कि मैं नाराज़ हो सकूँ आपसे या कुछ पूछ सकूँ। लाइट ऑफ कर दे प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। रुख मोड़कर इसने कहा तो दारार ने दांत पीसे। अच्छा हकूक तो सारे दे दिए हैं मैंने तुम्हें, फिर भी गिले नहीं ख़त्म होते तुम्हारे। दारार ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे ये नुमाइशी हकूक कभी भी नहीं चाहिए थे। वो इससे कहकर रुख मोड़ गई। हम बहस बहस क्यों कर रही है आखिर?
اب वो भी तंग आ चुका था, हम नहीं आप। इसने इसकी तरफ उँगली उठाकर कहा, तुम्हें बुरा किस बात पर लग रहा है? तुम सुबह से बाहर नहीं आई, ना ही कुछ खाया। मोरे बता रही थी मुझे। अब वो इसकी बराबर में उठकर बैठ गया था। आपने ये पनिशमेंट क्यों लिया फिर? वो सामने देखती हुई इससे कह रही थी। ओह! तो तुम्हें ये चीज़ बुरी लग रही है? यार मैंने कहा ना, कहाँ ली थी? वो तो दादाजी ने दे दी मुझे। वो इस समय बेचारगी की हद पर था और आप तो इतने मासूम हैं ना, जैसे दादाजी ने कहा ज़हर पी लो तो पी गए। वो सख्त गुस्से में थी। अच्छा तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस सज़ा से? वो अब इंतहाई नरमी से इससे पूछा था। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा नहीं दादाजी ने सारी ज़िंदगी सरदार बनकर कैसे फैसले किए हैं और अब आप। इसलिए गहरा साँस भरा और इसकी मुँह तोड़ी थोड़ी सी पकड़कर अपनी जानिब किया। ऐसा कभी मत सोचना कि दाराद सरार खान सरदार अजमल खान जैसे फैसले कभी करेगा। सरदार अजमल खान को रवायत बचाने में दिलचस्पी थी, लेकिन दारार सरार खान को रवायत बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं वही फैसले करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। इसने इंतहाई तहम्मुल से कहा था। खान जी खाना। बाहर से पहले दरवाज़ा खटकाने और फिर दरखने की आवाज़ आई थी। हाँ आ जाओ, दरखने रख दो यहाँ। दारा ने कहा तो दरखने बिहाज की जानी मतवज्जा हुई। बीबी आप सारा दिन बाहर ही नहीं आई? दरखने इन बिहाज से पूछ रही थी जो बेड कौन से टेक लगाए बैठी हुई थी। हाँ तुम्हारी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, सेट होने वाली हुई है इनकी तबीयत। बिहार ने इसे घूरा तो दारा ने शरारत से एक आंख दबाई। तरख ने खाना रख कर चली गई थी तो वो फिर इससे इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो खाना खा लो वरना फिर तुम्हारी तबीयत सेट कर देनी है मैंने। दारा ने फिर से शरारत से इससे कहा, जिस पर इम्तिहाज ने अपने पीछे रखा हुआ कुशन इस पर उछाला था जिसे बड़ी रसायत से कैच कर लिया गया था। खाना इसने खाने की तरफ इशारा किया। वो आज हैरान थी। खिलाफ तवक्का इसका मूड काफ़ी अच्छा था। मुझे भूख नहीं है वाकई में। इम्तिहाज ने आंखें नीचे कहा, चाहती हूँ कि सेट करूँ फिर मैं तुम्हें। अब की बार लहजा संजीजा था पर आंखों में शरारत वाज़ा थी। अच्छा कहा रही हूँ, आपने खा लिया क्या? इसने पूछा तो दरार ने नफी में सर हिलाया। नहीं यार मुझे भूख नहीं है। दरार के कहने पर इम्तिहाज ने इसे घूरा था। खाए वरना मैं भी सेट कर दूंगी आपको। इसने इसी के अंदाज में इससे कहा था। बेख्तियार दरार कहका लगाकर हंस दिया। बहुत तेज हो तो ऐसे तुम। ट्रे के नज़दीक आते हुए इसने कहा तो इम्तिहाज मुस्कुरा दी। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। वो भी इसकी बात इसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। इम्तिहाज ने दिल ही दिल में इसके हमेशा ऐसे रहने की दुआ की थी, लेकिन वो दुआ करते ये बात भूल गई थी कि गैरत और कानून इंसान को बदलते रहते हैं। वो कभी वो नहीं रहता जो वो बनना चाहता है। इसलिए वो कैसे इससे उम्मीद लगा सकती है? ऐसी उम्मीद वो भी इससे शख्स से बेकार था। खाना खाकर इसने बर्तन साइड पर रखे। दारा तो लेट गया था, लेकिन वो जब वो वॉशरूम चली गई तो थोड़ी बात हाथ धोकर आई और लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर लेटी। आज इसे अपने अंदर एक अजीब हलचल और सुकून भी एक वक्त महसूस हो रहा था। तो अपने अंदर बजते हुए शोर से खुद भी हैरान और अजाद थी। वो दिल ही दिल में इस शख्स के लिए ढेरों दुआएं करती नींद की वादियों में उतर गई थी। वफा को मेरी, जफा को अपनी। कभी जो लिखता तो किस्सा तमाम लिखता। गुलाब शाखों से जब भी अधूरे से फूल छूटा। जो धड़कनों में सदा कोई भी। कभी जो सुना तो याद रखना। कभी दिसंबर की सर्द रातों में सोचना में जो तुम मैं याद करती हूँ तुम्हें हर पल। मुझे भी तुम फ़कत याद करना। वो अंदर आराम कर रही थी। ज़फ़्फ़ान डॉक्टर को छोड़कर वापस अंदर आया तो रुदाफ़ा बेगम सोफ़े पर बैठी हुई थी। ज़फ़्फ़ान ने देखने की कोशिश की कि वो क्या रो रही हैं, लेकिन इनसे इनके चेहरे पर हल्के से भी आंसू नहीं दिखे थे। वो चलता हुआ इनके पास सोफ़े पर बैठ गया। वो आज चेहरे से ही शिकस्ता लग रहा था। क्यों था वो शिकस्ता हाल? इसकी वजह साथ बैठी हुई ये हस्ती थी। इसने इनकी गोद में सर रख लिया। आपने पहले कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि बाबा जान आप पर? इसने आगे जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ बोलता। रुदाफ़ा बेगम ने इसके बालों में अपने नरम मखरूती उंगलियां चलाई थी। मेरा कभी भी तुमसे वैसा रिश्ता ही नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ भी बता पाती। तुम हमेशा से ही अपने बाबा जान के ज़्यादा नज़दीक थे। वो तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात मानते और मैं हमेशा एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश में तुम्हारे बाबा जान की जूतियाँ खाती रही। निगाहें साकन थी। मुझे ये समझ में नहीं आता मोरे कि आपने क्यों बर्दाश्त किया। क्या सरदार जी से क्यों नहीं कहा आखिर आपने कि बाबा जान आपके साथ क्या सलूक करते हैं? इसकी बात के जवाब में उन्होंने गहरा सांस लिया था। छोड़ो पुरानी बातें। मैं बस इतना जानती हूँ तुम कभी भी बुरे नहीं थे। मेरे बच्चे तुम्हारे बाबा जान की बेजहमायत और साथ ने तुम्हें बुरा बना दिया था। मैं हमेशा चाहती थी मेरा बच्चा नरम तबीयत का मालिक हो, दूसरों की मदद करने वाला, लेकिन मेरा एक भी ख्वाब तुम्हारे बाबा जान की वजह से पूरा ना हो सका। इसके बालों में हाथ चलाते उन्होंने कहा तो मुस्कुरा दिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मोरे, और हमेशा से करता था। बाबा जान के लाड प्यार ने मुझे कभी भी आपसे गाफिल नहीं किया था। और जहाँ तक बात रही बाबा जान की, तो वो आप पर हाथ उठाते हुए ये कैसे भूल गए कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ। इतनी आसानी से तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसका लहजा सपाट था। ना मेरे बच्चे वो बाबा है तुम्हारे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इनके लहजे में खौफ था। नहीं बोरे और नहीं। अगर कोई भी शख्स अपनी हद भूल जाए तो इसे इसकी हद याद करानी चाहिए। लेकिन बच्चे प्लीज़ बोरे। अच्छा एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ वो क्या? आप दादी बनने वाली है। इसका ये कहना था। दावा बेगम तो खुशी से निहाल ही हो गई। तुम सच कह रहे हो? जी जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे वाह! माशाल्लाह मेरा बच्चा माँ बनने वाला है। अब तुम खुद बाप बनोगे तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि औलाद की मोहब्बत आखिर होती क्या है। बसिया कैसी है? इसे चोट तो नहीं लगी? मेरी वजह से तुम्हारे बाबा ने इसे भी। उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा। आप फ़िक्र मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। बस डॉक्टर कह रही है कि इसे स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है और इस कंडीशन में स्ट्रेस ठीक नहीं है इसके लिए। इसके कहने पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ बच्चे, तुमने अब इसका बहुत ख़्याल रखना है। भूल जाओ पुरानी बातें। अब बस तुम ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उन्होंने तहम्मुल से इसे समझाया था। मोरे, मैं तो पहले से ही भूल गया हूँ। सब सिर्फ़
دارار کے علاوہ آخری بار اس نے منہ میں کہی تھی۔ اگر وہ اونچی کہتا تو یقیناً سخت سست ہی سننے کو ملتی اسے۔ جاؤ تم مسیح کو دیکھو، جا کر اسے کچھ کھائے، کچھ چاہیے نہ ہو۔ اس کے کہنے پر اٹھ گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں آپ ریسٹ کریں۔ اور ہاں وہ شمامہ آئی نہیں یونیورسٹی سے ابھی؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں بس آنے ہی والی ہوگی۔ مورے وہ شمامہ اور سبھی کی شادی کے بارے میں کیا سوچا پھر آپ نے؟ دارجی نے اس دن بات کی تھی مجھ سے۔ زکوان کے کہنے پر انہوں نے ایک بار سوچ نگاہ پر ڈالی۔ ہاں بچے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہارے بابا سے بات کر لوں، پھر کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں نکاح کی۔ اس کی بات سن کر وہ تو بھڑک ہی گیا تھا۔ ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا لالا ابھی زندہ ہے۔ آپ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے دارجی کو انفارم کر دیں۔ ویسے بھی شیر خان صاحب ایسے کسی معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گی۔ وہ داستان نے بابا کہنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے وہ اس کی اپنے بارے میں گفتگو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے لب بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ بابا جان، سردار اشمل خان کبھی بھی آپ کو اپنی پوتی کا رشتہ نہیں دیں گے، اور پھر جب سے آپ نے انہیں دیکھا ہے آپ بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یوں آپ گمسم ہو گئے ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بچے کبھی کبھی نا انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ چاہ کر بھی اپنا من پسند چیز کو چھو نہیں سکتا، حالانکہ وہ آپ کے بے حد قریب رکھی ہوتی ہے۔ اس طرح کا کچھ میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہا ہو۔ سوری، میں نے اس سے مٹھی میں قید نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ 30 سال سے جس چہرے کو اپنے سامنے دیکھنے کی ہمت میں اپنے اندر جمع نہیں کر پایا تھا، آج اچانک 30 سیکنڈ کے لیے میرے سامنے آ گئی، اور میں ابھی اس کے ہونے کا یقین ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ میری نظر سے اوجھل بھی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر نہ پھر سے سارے گزشتہ زخم ہرے ہو گئے ہیں، اور جو حشر اس شیر خان نے اس کا کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں اپنے فیصلے پر پختہ ہو گیا ہوں۔ ان روایت کی بازگشت تو اب ختم کرنی ہی ہے، تاکہ کل کو کسی اور رنداوا کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے، اور اس کے احساسات بھی رنداوا شیر خان کی طرح مارنا جائے گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہاں بیٹھا یہ سوچتا رہ گیا تھا کہ اس کے باپ کی بازی میں اس کا قصور کہاں ہے۔ وہ کیوں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے جو کسی اور سے پہلے سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ اسے زندگی سے بھرپور لڑکی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتا تھا کہ وہ محجب سران خان کے لیے سانس لیتی ہے۔ محجب کے نام پر ایک عجیب سا حسد اور جلن اسے محسوس ہوئی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ زندگی اسے کسی ڈگر پر لے کر جا رہی تھی۔ فودیل زہیب خان اسے یکسر انجان تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اسے قدرے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ حویلی میں مسیح کے امید سے ہونے کی خبر سن کر دارار کے سردار بننے کا فرسودہ ماحول چھایا ہوا تھا۔ وہ یکدم کچھ صاف ہوا تھا۔ پھلوشے کی ڈلیوری میں بھی بس ایک مہینہ رہ گیا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پر تھی۔ انتصارہ نے جب انبہاج کو یہ خبر سنائی تو وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے پھوپھی جان کے گھر کا نمبر ملایا، کال ریسیو کی گئی تو اس نے مسیح سے بات کرنے کا کہا، لیکن نوری نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ریسٹ کر رہی ہے، تو اس نے بھی فون بند کر دیا۔ وہ خود سے ہم گلاب ہوئی تو مسیح تم نے زکوان خان کی قبر کو اپنی موجودگی سے آخر جنم بنا ہی ڈالا۔ وہ شخص کسی کو مانگنے سے تم خوف محسوس کرتی تھی، آج پورا کا پورا تمہارا ہے۔ روایت اسے تم تک لائی تھی، لیکن تم نے اس کا باطن جیت لیا ہے، اس شخص کو جیت لیا ہے جس سے شادی کل تک تمہیں محبت ملنے کا دکھ لگ رہا تھا، اور جیسے کہ آنگن میں پھول پہنچانے کی تیاری تم نے کر لی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری ذات تمہاری خوشیوں کے بیچ رکاوٹ نہیں بنی۔ بس پتہ نہیں ابھی تک میں کیوں نہیں جیت پائی دارار سران خان کا باطن۔ اسے اپنا ظاہر تو بڑی بے دردی سے مجھ پر احسان کر کے میرے حوالے کر دیا تھا، جس کی شدید شاید ضرورت بھی مجھے نہ تھی، لیکن جس کی خواہش تھی وہ ابھی تک اس کا میرا نہیں ہو سکا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسب، کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے یہ بھول رہی تھی کہ قدرت نے اس کے لیے بہت پہلے سے ہی اسے ظاہر و باطن سمیت اسی کا مقدر کر دیا تھا، تو پھر اس کی شکایت بنتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود اپنے لیے خاموشی اور صبر کا راستہ چنا تھا، اور ان دونوں راستوں میں فتح دیر سے ہی نصیب ہوتی ہے، وہ بھی تب جب بندہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ جب عہد ڈگمگانے لگے تو منزل مشکل ہو جاتی ہے، اور اللہ کو اس کی شاید یہی بات پسند تھی کہ صبر و خاموش رہ کر تھکتی نہیں تھی۔ جب بھی اسے لگتا وہ تھکنے لگی ہے وہ اللہ سے گڑگڑا کر اپنے لیے صبر مانگ لیتی، تو کیوں نہ پھر اس کی منزل اس کے قریب ہوتی۔ منزل قریب تھی مگر بس اسے ایب بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب منزل اس کے قدموں میں ہوتی۔ جہارا بیٹی نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا خبر سنایا ہے، تم اس کا گھر نہیں جائے گا کیا؟ بی بی جان نے تسبیح کرتے ہوئے کہا تو جہارا بے خبر سوچ ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہے بی بی جان، جانا تو میں نہیں سوچ رہی ہوں، رحمہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، بلکہ آپ بھی ساتھ چلے، مبارک بات کے ساتھ نکاح کی تاریخ بھی لے آئیں گے رنداوا سے۔ انہوں نے اپنے طور پر بڑی ہی بات کی تھی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تمہارا دارجی بھی ہم کو رات کہہ رہا تھا کہ تاریخ رکھ لو۔ بی بی جان نے کہا تو جہارا بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن بی بی جان بہچی پر انتظار کے نکاح کا کیا ہوا؟ انہوں نے فکر مندی سے وہ بات کہی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔
की थी हमने इस सिलसिले में भी बात तुम्हारे दारजी से। उन्होंने कहा पहले अभी फ़िलहाल सभी की निकाह से फारिग हो जाए, फिर मोहजिब के बारे में सोचेंगे। बीबी जान कैसे इन्हें बताती कि मोहजिब और इंतज़ार के रिश्ते से मुंसलिक गुफ्तगू में क्या गड़बड़ चल रही है, इसीलिए तो सबका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए ही तो सभी और मामा के निकाह का सोचा गया था। वो यूनिवर्सिटी से आई तो काफ़ी थकी हुई थी, आते ही अपने कमरे में आराम के लिए चली गई और दावा भी कि कुछ देर बाद दरवाज़ा लॉक करके इसके कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है बच्चे, खाना नहीं खाओगी आज? उन्होंने नरमी से इससे पूछा। नहीं बोले, बस भूख नहीं ही नहीं थी। वो इसके पास बेड पर बैठ के मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने जैसे तमहीद बांधी थी। जी पूरे बोले, सब खैर तो है ना? इसने हैरत से पूछा तो उन्होंने इसकी जानिब देखा। हाँ, वो आज पीर बेगम राहिबा और बीबी जान आ रही है तुम्हारे निकाह की तारीख तय करने। उन्होंने वो बात कह दी जो इससे कहना चाहती थी। मेरे निकाह की तारीख मगर इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर ऐसे में शादी में समझ नहीं पा रही इसके चेहरे में उलझन वाज़िया थी। देखो बेटियाँ, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए ना इतना ही बेहतर होता है। और फिर तुम कौन सा किसी गैर के यहाँ जा रही हो, अपना ही घर है। बीबी इंतसारा बलवशे सब होंगे वहाँ, तुम फिक्र मत करो। दावा बेगम भी इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। लेकिन मोरे फिर भी वो एक मोहम सी कोशिश एक बार फिर से की गई थी। कोई फिर वर नहीं, बस डेट फिक्स कर रही हूँ मैं आज। वो इससे कतई लहजे में कहकर वहाँ से बाहर आ गई। वो अब हकीकी मायनों में चाहती थी कि यमामा अपने घर की हो जाए। दरार आज शाम को ही हवेली आ गया था। ऑफिस का काम कम था तो इसे बेहतर यही लगा कि घर चलकर कुछ देर आराम किया जाए। वो पोर्च से होकर सीधा मर्दान खाने में आया था जहाँ दार जी बैठे हुए थे। बगैर आखले दार जी उन्होंने अंदाज में असली एहतराम था। बगैर आखले बच्चे। वो इन्हें सलाम करके गुजरने वाला था जब फिर से दार जी की आवाज़ सुनाई दी। किधर जा रहा है तुम शाह, अभी कबीले से लोग आने वाला है, तुमको इधर ही बैठना है। इसका तो दिल किया था कुछ उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन क्या करता है, दरा बीच में आ गया। फिर खुद को करते कंपोज करके बोला, सॉरी दार जी, फिलहाल मैं बहुत थका हूँ। आज के दिन मेरे घर मेरी जगह आप लोगों को डील कर ले प्लीज़। वो कहकर इनका जवाब सुनने के लिए रुका नहीं था। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गया। पीछे दार जी बस इसकी हरकतों पर जब्त करके रह गए थे। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। इसने खाली कमरा देखकर एक अजीब सी झुंझुरी आई थी। पता नहीं ये हर वक्त कहाँ घूमती रहती है, एक जगह सुकून से बैठा नहीं जाता इससे। अभी भी पता नहीं कहाँ गई है। वो खुद से कह रहा था। वो चाहता था कि वो कहीं से भी आए, इसे सबसे पहले इसका चेहरा नजर आए। वैसा क्यों चाहता था वो इस बात से अक्सर अनजान था। इससे अपना दिल धीरे धीरे बेबस होता महसूस हो रहा था, लेकिन ये बात बातें से इंकारी था। तहरार सराहन अपनी हार कैसे बर्दाश्त करता या कैसे मानता, इसलिए वो अपने आप को हारा हुआ तस्वुर ही नहीं करता था। वो वार्डरोब की तरफ जाने लगा था जब इसकी नज़र नीचे पिछले लॉन की खिड़की की तरफ पड़ी। और इसे नीचे लॉन में वो बैठी हुई नजर आई, नेवी ब्लू प्लेन कुर्ता वाइट ट्राउजर के साथ, पहले सर पर नेवी ब्लू दुपट्टा चाय वाय। वो चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी, साथ में टाइम पास के लिए कोई मैगजीन भी पड़ा हुआ था। नेवी ब्लू दुपट्टे में इसकी सुर्ख और सफ़ेद दूधिया रंगत और भी निकल रही थी। सुनहरे बाल दुपट्टे के आले से झांक रहे थे। गहरी समुद्री आंखें मैगजीन के मुताले में गर्क थी। मखरूती उंगलियों ने चाय के मग को थाम रखा था और वो बार बार मग अपने खूबसूरती अनामी होठों तक लेकर जा रही थी। दारा सराहत को इस हस्ती पर अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। इतना हुस्न इसने वाकई ही कभी भी नहीं देखा था। वो इतनी देर लड़ रहा था, इससे बढ़कर एक हसीन लड़की एक ही थी, लेकिन इनमें से कोई भी बेहार जैसी नहीं थी। शायद इनमें से कोई भी दारार सरार की बीवी के होने पर फाइज नहीं थी। वो किसी और लड़की को इसने कभी इस नजर से देखा भी नहीं था जिससे वो इन मिहाज को इस लम्हे देख रहा था। वो इसकी है ये इस्तेहाक ही इसका सिर खूब बढ़ा रहा था। इसे देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट दारार सरार खान के चेहरे का अहाता किया था। वो चेंज करके वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। चेंज करके वो बाहर आया तो उसका रुख भी बाहर पिछले पिछले लॉन की जानिब था। वो बर्दाश्त खाने से गुजरने के बजाय अब की बार ऊपर से ही पिछली सीढ़ियों से ही लौट में आ गया। वो ऑफ वाइट चलवा कर में बलबूस भूरे बाल हनूस माथे पर बिखेरे हुए था, जिन्हें वो हाथों से पीछे हटा रहा था। वो लॉन में दाखिल हुआ तो अभी भी इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। बगैर आंकड़े धारा ने आज जिसे सलाम किया था, इन बिहार ने चौंक कर आवाज के ताकुब में देखा और हैरान हुई थी। फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराई थी। बगैर आंकड़े आप कमाए, इसने सलाम करके सवाल भी पूछ लिया था जब आप एक्सीट पढ़ रही थी। तब वैसे क्या है जिस मैगजीन में जो इतने जोरों शोर से पढ़ा जा रहा है इसे? तारार को मैगजीन में लिखे हुए और राग में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। अरे कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास बोर हो रही थी और मौसम अच्छा था तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। इन बिहार ने इसकी जानिब देखते हुए कहा तो इसने एक नज़र इतराफ़ पर डाली। हाँ, मौसम तो वाकई ही बहुत अच्छा है, फिजा में हल्की हल्की ठंड भी हो गई है। तारा ने एक निगाह इतराफ़ में डालने के बाद इससे कहा था, अच्छा ये बताए कॉफ़ी पिएगी आप? इसने इससे कॉफ़ी का पूछा था। यार पिलवा दो, बहुत थका हुआ हूँ मैं। अच्छा मैं बना कर लाती हूँ। उठकर जाने लगी जब इसने पीछे से इसकी गलाई थामी थी। इन बिहार ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। किसी से कहकर बनवा लो, तुम इधर बैठो मेरे पास। दारा ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा तो इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा। लेकिन किसी से कहूँ खुद ही जाना पड़ेगा मुझे। इन बिहार बेचारगी से कहा तो दारा ने कुछ लम्हे सोचा था, तुम लोग को मैं खुद कहकर आता हूँ, लेकिन मैं बना लाती हूँ ना। इसने उंगली से खामोश करवाया और खुद उठकर अंदर की जाने पड़ गया। कुछ ही देर में वो वापस आ गया था। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है? ये दारा इतना नरम कैसे हो गया? इन बेहाश तो ये सोच सोच कर ही पागल हो रही थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि जब से के दरमियान रूह का रिश्ता बना था तब से वो इसे चाहकर भी सख्त रवैया नहीं रख पा रहा था। इसलिए
इसने अपनी कोशिश ही तक कर दी थी, वो इसके साथ प्यार और नरमी से ही पेश आ रहा था। मुझे ऐसा लगा ऐसा कुछ खास तो नहीं जो भी मिल जाए। इब्तिहाज ने बड़े ही आराम से कंधे उचकाए थे। यार तुम कैसी लड़की हो, जैसे कुछ पसंद ही नहीं। अच्छा सुनो बाहर चले, इसने एक तभी बड़े राजदाराना अंदाज में इससे कहा था। क्या बाहर? ना भाई ना, मैं नहीं जा रही। ब्याज ने घबरा कर कहा तो दारा ने मुंह बना लिया। चलो ना, कुछ नहीं होता, सवाल घूमते हैं थोड़ा सा। इसके लहजे में बेटा थी। हाँ, ताकि पिछली बार की तरह फिर से कोई नई सजा मिले आपको। मुझसे तो अब भी आपकी पुरानी सजा हजम नहीं हो रही है। आप नहीं की बात कर रहे हैं? ब्याज ने टांग पर टांग जमा कर कहा। पिछली बार मैं सरदार नहीं था, लेकिन अब की बार मैं सरदार हूँ। और सरदार दारा सनान खान को अपनी सरदारनी को बाहर लेकर जाने से कबीले का कोई बंदा नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी। अंदाज सुना जो था। मुझे डर लग रहा है और भी खौफजदा थी। यार उफ, कितना डरती हूँ, कुछ नहीं होता। चलो ना। इसने इसका बाजू खींच कर इसे कुर्सी से उठाया था। अच्छा लेकिन चादर लेने तो ऊपर जाना पड़ेगा। बेहोश ने कहा तो तारा ने मुंह बना लिया। उफ, ये भी मसला ही है। तो तुम क्या दुपट्टे पे नहीं चल सकती? ये 2 ढाई गज की चादर लटकाना जरूरी है। हाँ, इब्तिहाज ने सच्ची खासी घूरी से नवाजा। अच्छा भाई सॉरी, पर अब ये चादर लेते तो ऊपर गई तो सबको पता चल जाएगा, नया अजाब खड़ा हो जाएगा। वो एक पल में झुंझला गया। हाँ जी, आपकी कॉफ़ी। दरखने कॉफ़ी लेकर इसके सामने आ चुकी थी और वापस मुड़कर जाने लगी जब दारा ने इसे मुखातिब किया। सुनो दरखने, जाकर हमारे रूम से अपनी बीबी की शॉल लेकर आओ जल्दी, और अपना ये जो मुंह है ना इसे बंद रखना। इसने इशारा करते हुए कहा तो वो सर हिला गई। जी हाँ जी, जो हुक्म। वो चली गई और ब्याज हैदर से इसे धूप छाँव के से बंदी को देख रही थी। कुछ ही देर में दरखने इसकी स्याह शॉल लेकर आ गई। इब्तिहाज ने शॉल ओढ़ी और दोनों आगे पीछे चलते हुए दारा की हेलेक्स तक आ गए। दारा ने चौकीदार से गेट खोलने का कहा और साथ में किसी गुनाह बताने की तलकीन भी की। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इब्तिहाज पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। दारा ने हेलेक्स स्टार्ट की और हवेली का आखिरी गेट अबूर किया। तेरा साथ मुझे तो हमेशा दरकार था, इन राहों पर तो मुझे चलना ही था। तुझे बिन कैसे कटी थी ज़िंदगी, तेरे संग बैठकर तुझे ये बताना था। मेरी चाहतों का सिलसिला बहुत वसी है। अब बस ये यकीन तुझे दिलाना था। मैं तेरे बिन रह नहीं पाऊंगी। अपने लफ्ज़ों को साबित करके तुझे दिखाना था। अहमद खान ज़ुबान हाउस में गोया खुशी से अपने पैर फैला लिए थे। वहाँ तरफ खुशी खुशी थी। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। जब वो फारिग होकर अंदर दाखिल हुआ, इसको लेटे हुए देखा तो मुस्कुरा उठा। इससे आज बसिया बेहद खूबसूरत लगी थी। वो चलता हुआ इसके पास आया और बेड पर बैठ गया। इसने बसिया का एक हाथ अपने हाथ में थामा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? इसने इस इसने इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछा था, लेकिन मसीहा ने कोई जवाब देने के बजाय वो इधर ही रखा था। इसे ज़बान से सूरत हाल में सख्त शर्म आ रही थी। यार अब क्या तुम इधर देखोगी भी नहीं? उसका मुंह अपनी तरफ कहकर कह रहा था। मसीहा ने नजरें नीचे झुका ली। ओह मी गुड, आर यू ब्लशिंग मिसेस सकवान? वो अब हंसते हुए इससे कह रहा था। प्लीज़ तक बंद करिए मुझे आप। वो झुंझलाकर इसे कह रही थी। अच्छा सॉरी नहीं करता, उठकर बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसने इसे सहारा देकर उठने में मदद दी। क्या बताना है आपने? मसीहा ने हैरत से पूछा। सबसे पहले तो आई एम सॉरी मेरे एटीट्यूड के लिए। मैं कभी तुमसे रूड हो गया, लेकिन मोस्टली मैं चाहकर भी तुमसे रूड नहीं हो पाया। मसीहा खामोशी से इसको सुन रही थी। इस लम्हे से सुनना अच्छा लग रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे आगे हार जाऊंगा। ज़फ़ार शेर खान ने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद को बेबस और हारा हुआ महसूस किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो नेमत थी जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में ही नाशुक्री करता रहा। लेकिन मुझे कहने में आज ना तो कोई आ रहा है और ना ही शर्म कि बिलाशुबा ज़फ़ार शेर खान पूरा का पूरा तुम्हारा है। इसका ज़ाहिर भी तुम्हारा और इसका बातिन भी तुम्हारा। इसमें अब कोई नहीं आ सकता। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका था। अभी इसने जवाब में मसीहा की जानिब देखा जो बिल्कुल खामोश थी। बस इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। तुम रो रही हो मसीहा, लेकिन क्यों? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे तुम्हें रोना आए। इसने इसके आंसू साफ करते हुए कहा था। मैं बस इसलिए रो रही थी कि अल्लाह भी कितना मेहरबान है ना अपने बंदे पर। कभी कभी वो इसके दिल की बातें कैसे बगैर कहे ही जान लेता है कि मेरा ये बंदा मुझसे ये चाहता है, और फिर वो वही इसको दे देता है जैसे इसने आपको मुझे दिया। नम आँखों से इसने कहा तो ज़फ़ार ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। तो तुम क्या मुझे शुरू से चाहती थी? ज़फ़ार को इसे सुनने में मज़ा आ रहा था। आज शुरू से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। जब आपने हवेली में आकर बीबी का रिश्ता माँगा था ना, तो मेरा बहुत बुरा हाल था। फिर बीबी मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे समझाया था। मसीहा ने आहिस्तगी से कहा। तो ज़फ़ार ने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। क्या समझाया था? यही कि रवायत आपको मुझ तक ले आएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अपना मुकाम मैंने खुद बनाना है। जिस कब्र में पाँव रखने वाली हूँ, इस कब्र को जन्नत में बनाना है। आपका बातिन जीत कर और देख ले। अभी आपने खुद कहा है कि मेरा ज़ाहिर और मेरा बातिन सिर्फ तुम्हारा है, तो मैं जीत गई आज। इसने अपने आंसू साफ करते हुए सर ज़फ़ार के इशारे से दिखाया। ज़फ़ार ने इसका सर सहलाते हुए लब इसके बालों पर रखे थे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डैड फॉर मी। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फादर। आई जस्ट से मसीहा ज़फ़ार खान रियली लव्स यू यू कंप्लीट ज़फ़ार खान। वो बोल रहा था। मसीहा को अपने अंदर सुकून की लहर उतरती हुई महसूस हो रही थी। बेशक किसी का सब्र किसी भी कभी भी राय का नहीं चाहता, और ये मसीहा को आज अपने सामने समझ आ गया था। अच्छा तुम रेडी हो जाओ,
हवेली से तुम्हारे बोरे भी चढ़ आ रही है सबिया और जवाबा की निकाह की डेट लेने। इसने बिस्तर से उठते हुए कहा था। ओके, मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ रेडी होकर। ज़कवान ने कहा तो वसीया ने कहा तो ज़कवान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, लेकिन आराम से आना। ओके, वो बाहर चला गया, लेकिन जब वो आईने के सामने चली गई और खुद का अक्स आईने में देखा जहाँ ज़कवान की मोहब्बत के जुगनू चमक रहे थे। माई ज़कवान खान, इसने इतरा कर आईने के सामने खड़े होकर कहा, क्योंकि वो मखरूर और पुरकशिश मर्द इसका था। इस समय वसीया को इसके चेहरे पर गरूर की एक रमक भी नजर नहीं आई। सब जैसे कहीं पीछे रह गया था। ये तो दुनिया ही अलग थी, जिसमें वो भी ज़कवान खान और इनकी आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी वो कपड़े लेकर चेंज करने चली गई थी। रुको, मेरी बात सुनो। मोर्चे पे लॉन में जाती इंतज़ारा को पीछे से पुकारा था। जी बोले, क्या बात है? इसने आईब्रो चढ़ाकर इससे पूछा था। यार, कितनी गलत बात है कि अब तुम मुझसे मिलती नहीं हो। वारसी मुंह बुलाकर इससे कह रहा था, क्यों अब के अब हमारी शादी होने वाली है ना, तो एक ही दफ़ा मिलूंगी आपसे। इंतज़ारा ने धड़क कर कहा था, कितनी बुरी हो गई हो तुम। मुझे ने इसे बुझदिल गुस्से से कहा था, आप बात समझे तो सही, मैं कैसे मिलूँ अब जब घर में लाला और जमावा की शादी की तैयारी शुरू होने वाली है। इंतज़ारा ने झुंझला कर कहा तो मुझे भी बस आ भरी। इन दोनों की शादी करा रहे हैं, अब मासूमों का तो किसी को ख्याल ही नहीं। रोहन से लहजे में इसने कहा तो इंतज़ारा को हंसी आ गई। हमारा ख्याल भी बस करने ही वाले हैं, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं हर बात की। इंतज़ारा ने इसकी बात इंतज़ारा ने इसे परसुकून करने की कोशिश की थी। बस पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है जल्दी से शादी हो जाए और तो मेरी हो जाओ। हाथ दिल पर हाथ रखते हुए मुझे ने कहा तो इंतज़ारा मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप प्रेशर मत लें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो इससे कहती पलट कर वापस अंदर चली गई, लेकिन जबकि वो वही लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया, इसे मुसलसल कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। जैसे वो समझ नहीं पा रहा था, वो बस अल्लाह से बेहतर होने की दुआ कर रहा था। इस बात से जान के सब बेहतर होने की दुआ इसकी कबूल कर ली गई है, लेकिन सब बेहतर अल्लाह ने अपने अंदाज में करना था। वो सवात की खूबसूरत सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था, जहाँ एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़। इब्तिहाज इसको बहुत बार गाड़ी ठीक तरीके से चलाने का कह चुकी थी, क्योंकि खाई इतनी गहरी थी कि इसे खुद खौफ आ रहा था। प्लीज़ ध्यान से चलाए ना, देखिए कितना खराब रास्ता है। मैं इसलिए नहीं आ रही थी, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा नया नया सरदार बनकर जोश पर चढ़ा था। इब्तिहाज ने खौफ से कहा तो दरार ने गहरा सांस भरी। यार, ये बात तुम पिछले आधे घंटे में 15वीं बार कह चुकी हो। तुम्हारा शोहर कोई इतना कच्चा ड्राइवर नहीं है जो एक हेलिक्स सही से ना चला सके। लंदन में 11 की चलाई हुई है मैंने। इसने फखरिया कलर अकड़ाई थे। मिस्टर सरदार, वैसे क्या कभी आपने खून किया है कि आपकी साथ हद तक खुद पसंद इंसान है? वो खुलेआम इसकी साथ पर बड़ी ही धड़ल्ले से तबसरा कर रही थी। खुद पसंद और मैं? इसने गाड़ी चलाते हुए अपनी तरफ इशारा किया। जी जी, आप। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे ही कि आप कहते हैं लंदन में मेरे शोहर के पीछे लड़कियां पागल थी, और वो ऐसे कि आप बड़े ही अच्छे ड्राइवर हैं। इब्तिहाज ने इसकी अकल उठाते हुए कहा तो दरार ने इसे घूर कर देखा। मिसेस इब्तिहाज, आप ज़्यादा ही कुछ अपने शौहर के बारे में नहीं बोल रही। इसने अपनी मुस्कुराहट जब करते हुए मस्तूरी संजीदगी से कहा तो इब्तिहाज की यहाँ सराई एक मिनट में सिमटी थी। आपको बुरा लगा है मेरा आपके बारे में बात करना? ओके सॉरी, अब नहीं करूँगी मैं। इब्तिहाज ने एक मिनट में खामोशी इख्तियार की थी। अरे नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मेरी सलाह की। ये क्या हो रहा था? सरार खान को अच्छा लग रहा था कि कोई इसकी सलाह कर रहा है। बेहाश तो जितना हैरान होती इतना कम था। अच्छा ये बताओ, कहाँ चलना है तुमने पहले? तरार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए उससे पूछ रहा था। सवाद बाजार। मैंने सुना है सवाद बाजार बहुत खूबसूरत है, वहाँ से यहाँ की इलाकाई कपड़े और शॉल्स बहुत अच्छी मिलती है। इसके लहजे से दबा दबा जोश छलका था। तो फिर चलो, फिर सवार बाजार ही चलते हैं। इसने जीपीएस ऑन किया और सवाद बाजार की लोकेशन डाली। सच तो ये था, इसे बिल्कुल भी सवाद के रास्तों का अंदाजा नहीं था। गाड़ी सीधी सवाद बाजार रुकी थी। तारार और बिहार दोनों गाड़ी से उतरे थे और अंदर चले गए थे। बाजार वाकई ही इस हद खूबसूरत था। रंगारंग सवाद के इलाकाई मलबूस कश्मीरी तर्ज की ज्वेलरी, पश्मीना की बेशकीमती और खूबसूरत शॉल्स, कढ़ाई वाले कुर्ते और मेक कितना खूबसूरत था। ये सब इससे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का दरार से लेकर एक शॉप पे आया था जहाँ बेशकीमत और खूबसूरत रंग बिहार स्टाइल में शॉल्स मौजूद थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? बिहार ने उलझ के दरार की जानिब देखा। एक मिनट रुको ज़रा, अभी पता चल जाएगा। इसने इसे खामोश रहने का इशारा किया और सेल्समैन से एक मेहरून रंग की शॉल निकलवाई। शॉल में इंतहा खूबसूरत थी। मैंने प्लेन मेहरून कलर की शॉल जिसकी चारों तरफ खूबसूरत ब्लैक कढ़ाई हुई हुई थी। दरार का इरादा इसे एक शॉल लेकर देने का था। ये आप पैक कर दे। दरार ने सेल्समैन से कहा तो बिहार ने इसकी जानिब देखा। ये लेडीज शॉल आप इसके लिए ले रहे हैं? अब की बारी बिहार ने दांत पीस कर कहा। यार, कितनी लेडीज़ है जो मेरी बीवी है? तुम पागल हो या मुझे नहीं करेक्ट करती हो? अभी सी ओबियसली बात है, तुम्हारे लिए ही ले रहा हूँ, दारा ने झुंझला कर कहा। तो इन ब्याज ने हैरत से इसकी जानिब देखा। क्या मेरे लिए? इन ब्याज पूरे आंखें खोलकर इसको देखा था। बेसाख्ता इसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिससे इसका सब्र लगता था। पसंद आ गया है, वो शुक्रगुजार थी अल्लाह की जिसने इस शख्स को इसके हक में नरम लिया था, इसके दिल में रहम डाला था। अच्छा, फिर मैं भी आपके लिए कुछ लेती हूँ, इब्तिहाज ने कहा तो दारा ने मुस्कुराहट दबाई। ओह, तो तुम बदला चुका रही हो? दारा ने हैरत से इसे देखा।
نہیں بدلا نہیں چکا رہی دوستی کی شروعات کری بحاج نے ایسے ہی روانوی کہہ دیا ہم دوستی یہ دوستی ویسے کب ہوئی ہمارے درمیان اس نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بڑی ہی سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا چلو نہیں ہوتی تو اب کر لیتی ہے تم اس سے سردار خان کی عابد بحاج صالح خان کی دوست بنے گی اس نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے اسے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا سارے عرصے میں اس نے نئے سرے سے دارار سے عشق ہوا تھا اور اس سے کوئی غم کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا وہ پہلے بھی اس کی تھی جب وہ اس کی ذات کی نفی کرتا تھا اور اب اگر نفی نہیں بھی کرتا تو بھی اس کی ہے ہو مسز انبہاج دارار میں سوچ کر جواب دوں گا ٹھیک ہے نا اس نے اس کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا لے بھائی بھلا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ایک دوستی ہی کرنی ہے کوئی دنیا فتح نہیں کرنی آپ نے سردار صاحب انبہاج نے چڑ کے کہا تو دھرا نے ٹھنڈی آ بھری یہ میرے سردار بننے سے کیا چڑھ ہے تمہیں جو اتنا کھینچ کر مجھے سردار صاحب کہتی ہو تو آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا گیا تو انبہاج نے سر جھٹکا کچھ نہیں ایسے ہی بتائے دوستی کی کہ نہیں ہاتھ انوس اس کے سامنے تھا اچھا وہی آپ کی والی دوستی اس نے اس کا ہاتھ بڑا ہوا نرم ہاتھ تھام لیا تھا او ہاں میں آپ کو ایک گڈ نیوز تو دینا بھول ہی گئی انبہاج نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا کون سی گڈ نیوز وہ دونوں کان سے نکل کر ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے وہ نہ اف کیسے بتاؤں انبہاج کو دارار کو بسیا کی پریگنسی کا بتاتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی ایسا کیا ہے جو تم ایسا سوچ رہی ہو دارار نے تجسس سے پوچھا تو انبہاج نے خود کو کیا کیا دراصل میں مسیحا ایکسپٹنگ جس نے جلدی روانی میں جملہ بولا تھا واٹ کیا ہوا کچھ نہیں چلو چلتے ہیں آگے دارار کو زکوان کے دوگلے پن پر اس حد غصہ آ رہا تھا کیا تھا وہ انسان دارار کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس خبر پر کس طرح کا رد عمل دکھائے خیر وہ انبہاج کو کچھ بھی ظاہر نہیں کرانا چاہتا تھا انبہاج خوش تھی اور فی الحال یہ دارار کے لیے کافی تھا اسے انبہاج کو جاننا اور سمجھنا اچھا لگ رہا تھا وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا جسے پتا تھا آج مورے اور بی بی جان سبھی کی شادی کی ڈیٹ لینے گئے ہیں تو وہ انبہاج کو شاپنگ کرانا چاہتا تھا خود اپنی مرضی سے برائٹ کلر کی درار کو اس پر برائٹ کلر اچھے لگتے تھے اس لیے اس نے اس کے لیے میرون شال لی کیونکہ میرون اس کے لیے میرون شال لی تھی کیونکہ میرون کلر انبہاج کو بہت سوٹ کرتا تھا اس کے بعد بھی اس نے اس کو بہت سی شاپنگ کرائی تھی اور پھر دونوں شاپ سے پہلے حویلی واپس آ گئے تھے شکر تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا ورنہ ایک اور نئی مصیبت پڑ جانی تھی وہ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کر کے نیچے آئی تو پوری چھوٹی بیگم اور بی بی جان موجود تھی بخیر آخری بی بی جان اس نے پہلے بی بی جان کو سلام کیا جی طرح ہمارا بچہ سدا خوش رہو مبارک ہو تم اتنا اچھا خبر سنایا تم نے ہم کو بی بی جان نے اپنی پوٹلی سے ہزار کے چند نوٹ نکال کر اس پر سے مارے تھے اور پاس کھڑی ہوئی نوری کو پکڑا دیے تھے بہت شکریہ بی بی جان کیسی ہیں آپ مسیحا نے بہت محبت سے ان سے حال پوچھا اور پھر وہ اپنے بورے اور چچی جان کو ملی تھی شکر ہے اللہ کا ہاں بالکل ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا اور بہت اور احتیاط کرنا ایک تم ہمارا بچی کا خیال رکھنا بی بی جان نے زکوان کو ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا جی بی بی جان جو کم آپ کا پورا خیال رکھوں گا زکوان نے اپنا شانہ سہلاتے ہوئے کہا تھا تمہارا مورے کہا ہے اس کو ادھر بلاؤ ہم نے اس کو ملنے کے واسطے آیا ہے بی بی جان کے کہنے پر اس نے ایک نظر نوری کی جانب دیکھا تھا جی آپ بیٹھے نوری تم مورے کو دیکھو جی خان جی وہ کہہ کر چلی گئی اور زکوان مسیحا کے برابر بیٹھ گیا ہمارے پوتی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم بھر جاتے ہو آپ کو بی بی جان کو نہ جانے زکوان سے کیا خطرہ تھا وہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی تھی جی بی بی جان پلیز مسیحا نے بی بی جان کو خاموش کرانے کی کوشش کی مگر زکوان پر برس رہی تھی آج زکوان کو بی بی جان کی اتنی فکر کرنے پر ہنسی تو آ رہی تھی مگر سب سے بیٹھا رہا بچے مبارک ہو تمہیں بہت بہت اب کی بار بی بیگم نے نرمی سے کہا تھا جی شکریہ بی بیگم آپ کو بھی مبارک ہو یہ سب مسکرا کر کہا تو بی بیگم کو مسیحا کو خوش دیکھ کر اطمینان ہوا تھا ورنہ وہ مسیحا کی وجہ سے لمن ہی رہتی تھی کچھ ہی دیر میں رتاوا بیگم آتی ہوئی دکھائی سجی ہوئی آنکھ جس کے پاس نیل تھا ہونٹ کے پاس بھی زخم کا نشان تھا سبھی نے دیکھ کر بے حد پریشان ہو رتاوا یہ کیا ہوا آپ کو رائمہ بانو نے حیرت سے پوچھا ارے کچھ نہیں چھوٹی بیگم میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی ان کے جھوٹ پر زکوان نے اپنے لب بھیجے تھے جبکہ مسیحا نے زکوان کا ہاتھ دبایا تھا جیسے سے ریلیکس رہنے کا کہہ رہی ہو سنو رتاوا ہم یہاں نکاح کا تاریخ طے لینے کے واسطے آیا ہوا ہے بولو پھر کیا سوچا تم نے بی بی جان نے کی چوٹیں اکثر نظر انداز کر کے سدا بدے کی بات کی تھی کیونکہ اب ان کے پاس ان چوٹوں پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بی بی جان جیسے آپ کو مناسب لگے انہوں نے بات بی بی جان پر ہی ڈال دی تھی تم شیر خان سے پوچھ لینا بی بی جان کے کہنے پر زکوان نے فوراً سے بیشتر بولا تھا ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی بی جان آپ ایک ہفتے بعد آ کر جب بابا کو رخصت کرا لیجیے گا جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی نہیں کہ وہاں بیٹھے افراد میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے وجہ پوچھ لیتے لے ٹھیک ہے پھر ہم ایک ہفتے بعد اپنا امانت لے جائے گا بی بی جان جھٹ سے راضی ہوئی تھی جی بہت بہتر ہے بی بی جان زکوان نے فوری کو چائے لگانے کا کہا تو سب چائے پینے لگے مگر زکوان کے چہرے پر اس پورے وقت کے دوران اس حد سنجیدگی تھی وہ خاموش بیٹھا رہا تھا تھوڑی دیر میں جب آپ ابین کے پاس آ گئی تو بی بی جان نے اسے پاس بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھے
वो हैरान परेशान होकर ये सारा मंज़र देख रही थी, मगर इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बीबी जान ये पैसे क्यों? इसकी बात पर बीबी जान मुस्कुराई थी। पगड़ी शुगर के पैसे हैं, 1 हफ़्ते बाद हमारा पोता आएगा तेरी बारात लेकर। बीबी जान सब ऐसे ही कह देती थी और शमामा को हवेली की कैब में जाने के नाम से ही अजीब-सी वहशत और खौफ महसूस हो रहा था। चलो अब हम चलते हैं, रात को कोई जरगे का फ़ैसला भी होना है। कबीले का पता नहीं इस दारार ने क्या फ़ैसला किया होगा। बीबी जान अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि दारार के फ़ैसला करने पर ज़फ़्फ़ार असाद हैरान हुआ था। 1 मिनट बीबी जान, ये दारार ने जरगे का फ़ैसला क्यों करना है? इसने बड़े तहम्मुल से इनसे पूछा था। क्योंकि मारा वो तो महाराज दारजी ने सज़ा नहीं दिया है, इसको सरदार बना दिया है कबीले का। वो तो बेचारा पागल ही हो गया। बस ज़ुबान पर तो हैरत का पहाड़ ही टूट गया था। दारार को सरदार बना दिया, दारजी ने पूरे कबीले का सरदार, वो बस सोचकर ही रह गया। दारार सलार खान और पूरे कबीले का मालिक ये कैसे हो सकता है? दारजी नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है वैसे। और आप दिन ब दिन हर हद को यूं ही पार किए जा रहे हैं। वो लंदन पलट अंग्रेज़ की औलाद सरदार बनने के काबिल था, जो इससे सरदार बना डाला आपने। ये बस मसीहा की वजह से मैं दारार का लिहाज कर रहा हूँ, इससे कुछ बुरा ना लगे, लेकिन अब तो मामला ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, वरना ये तो मुझे सड़क पर ले आएगा कमीना कहीं का। शिट! इसने ज़ोर से अपनी हथेली इसने ज़ोर से अपनी हथेली पर मुक्का मारा था, क्योंकि वो अब वहाँ से निकलकर लॉन में आ चुका था और शदीद गुस्से में भी था, पर इसे समझ नहीं आ रहा था वो खुद को कंट्रोल कैसे करे। आखिर सूरत-ए-हाल दिन-ब-दिन ख़राब होती जा रही थी और हालात इसके हाथ से निकलते जा रहे थे। दरार की दाई वो दरार की जलाई हुई सारी चीज़ें समेट रही थी। एक अजीब-सी तमानियत, एक अजीब सा सुकून इसके अंदर रक़्स कर रहा था। जिस इंसान की सिर्फ़ थोड़ी-सी तवज्जो वो हासिल करना चाहती थी, वो इंसान इसकी तरफ तवज्जो कर रहा था। वो खुशी तो इससे होनी ही थी। वो आज बेहद खुश थी। सारा सामान समेट के इसने अलमारी में रखा। वो दिल से दुआ गो थी कि आज जिस जिरगे का फ़ैसला दारार ने करना है, वो इंसाफ़ और मबनी हो। वो हवेली के लॉन में ख़ानदानी पगड़ी सर पर सजाए सरदार की कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने दोनों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई थी। इसके साथ दारजी बैठे हुए थे। हवेली के सब मर्द इस वक़्त जिरगे पे मौजूद थे। वो सब भी इसके सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इसके दोनों तरफ कुर्सियों पर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे। एक तरफ इस मज़लूम लड़की के घर वाले थे, तो दूसरी तरफ इस लड़के के लवाहिकी थे, जिसने इस लड़की की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की थी। लेकिन लड़की ने हिम्मत करके इस दरिंदे को से खुद को बचा लिया था और वो पकड़ा भी गया था। अब वो जिरगे में मौजूद था और दारजी ने दारार को रवायत के मुताबिक फ़ैसला करने को कहा था। आखिर को सरदार बनाया था इसे। आज इसने सरदार बनकर पहला फ़ैसला करना था और वो इंतहाई नर्वस था। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। आज इसे सही मायनों में एहसास हो रहा था कि सरदार बना किस कदर अज़ियतनाक है। दारजी की जगह पर आज वो खुद था। तो रवायत के बहुत से भयानक रूप इसके सामने आ रहे थे। दोनों तरफ से बात की दोनों तरफ से बात की जा चुकी थी। अब सिर्फ सब इसकी तरफ मुतवज्जह थे कि वो क्या फ़ैसला करता है। लाचार इसे बोलना ही पड़ा। हमने दोनों तरफ की बात सुनी। सिर्फ इस घर की ही नहीं, बल्कि हर घर की बहू बेटी हमारी यानी कबीले की इज़्ज़त है। और अगर मेरे कबीले की इज़्ज़त पर कोई पहली निगाह से देखे, तो मैं इसकी आँखें निकालने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा। इसलिए इस जिरगे के और कबीले का सरदार होने के नाते मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि ये इस बच्ची का मुजरिम है। अगर ये आज इसके साथ ऐसा कर सकता है, तो कल को किसी के साथ भी कर सकता है। इस मुजरिम की सज़ा का फ़ैसला ये बच्ची खुद करेगी। दारा ने अपनी बात ख़त्म कर दी, लेकिन दारजी ने उलझन और गुस्से से इसकी जानिब देखा था। लेकिन वो लम्हे इस हद संजीदा था। इसने बिल्कुल भी किसी की जानिब नहीं देखा था। इसने सिर्फ वही फ़ैसला किया जो इससे बेहतर लगा। हाँ तो बच्चे, बोलो तुम क्या सज़ा देती हो इसे? दारार ने इस हतदर्मी से इससे पूछा था, क्योंकि वो बेहद डरी हुई थी। मैं इसे सज़ा दूँगी। लड़की को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। इसका फ़ैसला यहाँ मैं क्या कोई भी हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना मुझ पर बीती है और ना यहाँ किसी और नफ्स पर। इसलिए इसका सज़ा का तयन तुम खुद करोगी और मुझ पर भरोसा रखो। तुम कोई भी फ़ैसला कर सकती हो। यहाँ मौजूद कोई भी नफ्स ना तो मुझे तुम्हें कुछ कहेगा और ना ही एतराज़ करेगा। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो इस हद नरमी से इससे मुखातिब था, जिससे लड़की को ढारिस मिली थी। इसे संसार करना चाहिए। एक ज़ानी की यही सज़ा होती है, ताकि आइंदा किसी लड़की की तरफ देखने की ज़रूरत ना कर सके। लड़की ने बड़ी ही बहादुरी और नफ़रत से इसकी जानिब देखकर कहा था, ठीक है, इसे यही सज़ा दी जाती है। वो कहकर अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से उठकर चला गया था, जबकि वहाँ बैठे हर नफ्स के लिए हैरत का मुकाम था कि इसके कबीले के सरदार ने एक औरत को मर्द को सज़ा सुनाने का हक दिया था, क्योंकि आखिर वहाँ बैठे लोग को में मुख्तलिफ जहमगोइयाँ हो रही थी और सरदार अजमल खान की कानों तक भी पहुँच रही थी। इन्हें सही मायनों में थोड़े से पछतावे ने घेरा था, क्योंकि इन्हें कबीले में अपनी इज्जत खतरे में नजर आ रही थी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि दारार के लिए किए गए फैसलों के आगे सर झुकाए। और ना चाहते हुए भी वो ऐसा करने पर मजबूर थे, क्योंकि इनका अपना फैसला था और इनके बकौल अजमल खान कभी गलत फैसला नहीं करता था। लेकिन हकीकत इन पर जल्दी ही खुलने वाली थी और इन्हें अपने हर फैसले की हकीकत भी पता चलने वाली थी।